अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में योर टीचर, योर ट्रेनर एंड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट मिस्टर मोहम्मद तनवीर हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। एक सिलसिले के साथ, टेंसेस के सिलसिले के साथ लेक्चर नंबर 5 आपके सामने आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो आप तक पहुँची होंगी। रिक्वेस्ट है कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। लाजमी है कि भाई सपोर्ट के लिए अगर कोई ना हो तो अकेले तरह कुछ भी नहीं कर सकता। स्पेशली लाजमी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मुझे कहीं ना कहीं कुछ अपने का फायदा होगा। तो काइंडली आप वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा ताकि दूसरों तक पहुंचे। तो इस सिलसिले के साथ टाइम को ज़ाया नहीं करता, मैं बात कर रहा हूँ टेंसेस के बारे में। टेंसेस के बारे में मैंने बेहतरीन बात आपसे की थी कि भाई टेंसेस क्या होता है। टाइम एंड एक्शंस कंबाइंड टुगेदर परफॉर्म अ टेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टाइम? टाइम इज three times, but what is time? Duration between birth to death is called time. Time is the second name of life. And how many types of time? Time are three types. Number one is present, and second one is past, and third one is future times. Future is assumption times and imaginations, as well as called dreaming. And the second one is action. Action means work. Work grammatically we can convert and sound this word like a verb. So what is verb? Verb shows action and state in a sentence. But verb means action, and action is performing like in 3-4 types. Number one is continuous action. Continuous means ongoing work. And a perfect action. Perfect means completed actions, completed work. And perfect continuous actions, it means half is being completed and half is going on. That is called perfect continuous. And one is indefinite action because it is out of definite action. That is called indefinite action. So these were the definition and introduction of the tenses. So then I discussed to you people that, and I taught to you people that about verb formation. How will we represent the verb tense? So especially we are talking about the verb, and when we are talking some about the lexical verb or a main verb, these are converted into the forms. And this topic, we can say verb formations. What does it mean by verb formation? When we divide it and when we classify the verb into the forms, that's called verb formation. For example, first form of verb, second form of verb, third form of verb, and fourth form of verb, as well as in last one is fifth form of verb. Fifth form of verb, we have a fifth form of the verb. So the first one, for example, supposed to be, we can say play, and the second one will be played, and third one will be played, and the fourth one will be playing, and fifth one will be plays. And after this, we are talking about, I discussed to you all that the primary helping verb can be converted into the main verb. But how many types of the primary helping verb? There are three types of primary helping verb. Number one is do, and second one is have, and third one is be. And the next, the modal auxiliary verb, and a modal helping verb, and a modal supporting verb, and a modal banking verb. These are totally 10. And 10 means can, could, well, would, shall, should, may, might, must, and ought to. So these are tense modal verbs. And we will be talking about some semi-modals, and semi-modal verbs as not included in the tenses. There's no need to discuss in tenses, but in form of verb, and when we are talking about some like an adverb or verb, we will be discussed it properly in detail. So today proceed this lecture into further the lecture number 5, that actually I discussed to you people that सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। सो उसके बारे में जो मैंने कल बात की थी कि टेंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज प्रेजेंट फॉर्म
And the second form of verb is past form, and third form of verb is perfect form, and fourth form of verb is continuous form, and fifth form of verb is present but in singular form. Because fifth form of verb will be placed after the singular form of the subject, and the first form of verb will be placed after the plural form of the subject. So let's move forward. I already discussed with you people that we will be represent and we will identify the tense according to the verb. Suppose we are getting one example and then we proceeded further. अब देख लीजिएगा, मैं जहां ये बात जुमला लिखता हूं, जुमला ये है कि भाई he has been doing a great job since 1947. This is the sentence. How do we represent this sentence? This sentence is belong to which tense? It's very easy. How? With the help of verb. How many verbs used in this sentence? First, second, and third. 3 verbs used in this sentence. But how do we represent this? According to the verb formation. That I discussed to you people that has is the fifth form of the have, which is helping verb. Have, had, having, has. So this is the fifth form of verb. So what does mean by fifth form of verb? Fifth form means I'm talking about the fifth form of verb. So this is the fifth form, and fifth form is represent to the present. And been is the third form, and this is third form is represent to the perfect. And doing is the fourth form, and this is represent to the continuous. So time is a present is time, and perfect continuous is action. Time and actions combined together, that's called tense. So actually this sentence is belong to present, perfect, continuous tense. So with the help of this verb, we can identify the tense very easily. There is no any such kind of magical problems that we can't represent the tense. It's very easy, but you should study the form of verbs. If you consider there are 3 forms of verbs, it means you will be not able to identify the fourth and fifth form. So this is actually the main issue of the students, and we are the trainer never able to deliver some like a proper knowledge because of this issue, because we just considered 3 forms of verb in all it. So अब मैंने यहाँ पे सवाल तो किया है कि V1 V5 is represent to the present singular form. It's always represent the present form in a present time. So यहाँ पे सवाल मैंने ये किया था कि जब अगर मैं ये बात कर लूं कि he के साथ क्या लगेगा? Singular subject and singular verb. Subject word agreement के बारे में अगर हम बात करें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम कहते हैं कि भाई सिंगुलर फॉर्म के साथ सिंगुलर वर्ब की जरूरत होगी। अब यहां पे देखिए मजा कुछ यूं आता है कि यहां पे मैं लिखूं कि ही डज इज आल्सो द फिफ्थ फॉर्म, मैंने लिखा कि ही इज आल्सो द फिफ्थ फॉर्म, मैंने फिर लिखा he has is also the fifth form. These 3 are helping verb, but is the fifth form of all the helping verb. So after this I am putting been, and then I am putting doing, and then I can write the another phrase that job since 1947. So this is the correct sentence. For example, this is the main sentence, and I write here which one is correct. He does been
doing a great job since 1947. Number one. Number two, he is been doing a great job since 1947. And number third, he has been doing a great job since 1947. And number fourth, he is doing a great job. And number five, he does doing a great job. And number six, he has doing a great job. Look at the sentences. जुमले को देख लीजिएगा कि ये हम किस तरीके से इन तमाम जुमलों को डिजर्व करते हैं और we in this sentence which one is correct and which one sentence is incorrect. So we will find out in it. From there we will be take a such like a good concept and we will be through our writing and we will be improve our writing, reading and speaking skill. That which is actually correct form of helping verb for the particular sentence. And why we are doing something this? अब याद कीजिएगा जैसे कि मैंने बात की है अब अगर मैं आपसे पूछूं पहले जुमले में जैसे कि मैंने ये आपको हेडिंग में जुमला दिया है अब इस पहले जुमले में आप मुझे यकीन है कि किसी भी बच्चे से मैं पूछूं कि कौन सा जुमला कौन सा वर्ब में लगा दूं तो आप डायरेक्टली इसको क्रॉस करोगे इसको आप क्रॉस करोगे और इसको पुट करोगे हालांकि ये सारे के सारे क्या है सारे के सारे V5 है अब ये सारे के सारे V5 है तो इट मींस कि ये प्रेजेंट हुआ हर एक प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है और साथ साथ अगर बीन की बात कर ले तो ये हमारे पास V3 को रिप्रेजेंट करता है और ये परफेक्ट हुआ और अगर डूइंग की बात करें तो ये जो 4 है और ये कंटिन्यूअस हुआ तो ये क्या बना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकिन आपने हैज को क्यों सेलेक्ट किया सवाल ये है हैज को आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं यहां पे डज V5 है क्यों नहीं किया आपने अब नीचे आ जाइए जरा देख जो को देखिए पहले जो मैंने लिखा ही डज बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब सिंस 1947 आप ऑलरेडी इसको क्या करोगे सर दिस इज क्रॉस दिस रॉन्ग फिर मैंने ही इज बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब सिंस 1947 आपने इसको क्रॉस किया फिर आपने कहा कि he has been doing a great job since 1947 और आपने इसको टिक किया आपने कहा सर ये सही मैंने कहा क्यों आपने कहा सर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज लगता है हैज और डज नहीं लगता मैंने कहा क्यों अंग्रेजों ने इस हैज में कौन सी वो मिठास देखी थी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रखी दिस इज द क्वेश्चन सारे के सारे V5 है सारे के सारे सिंगुलर है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब अकॉर्डिंग टू योर रूल एंड रेगुलेशन जिसको आप रूल्स कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब की जरूरत सिंगुलर वर्ब मैंने दे दिया आपने इसको क्यों गलत किया रीजन फिर यहां पे मैंने क्या किया ये भी V5 है सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब according to rule and regulation your subject verb agreement for the singular subject with he we will place V5 and is why you always point out this as wrong what's the reason and the next one and there this is also the V5 and singular subject and singular verb but has been corrected in this sentence you are point out this is correct sentence why was the reason and next come to below for the next sentences
ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। मैंने कहा, आपने कहा सर दिस वन इज करेक्ट। फिर मैंने कहा ही डज डूइंग अ ग्रेट जॉब, आपने कहा सर दिस वन इज रॉन्ग। ही हैज डूइंग अ ग्रेट जॉब, आपने कहा दिस वन इज रॉन्ग। यहां पे मैंने कहा क्यों, आपने कहा सर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है सर, इसी वजह से यहां पे एज लगेगा। यहां पे भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था, कंटीन्यूअस तो वहां पे भी मौजूद था। यहां पे आपने हैज को सेलेक्ट किया और यहां पे आपने इज को सेलेक्ट किया। इसमें कौन सी वो बात है जो अंग्रेज ने यहां पे एज कोड किया है? ये सवाल, इस चीज को हमने क्लियर करना है। इंशाल्लाह आज मेरी वीडियो जो रहेगी इस सिलसिले और इस टॉपिक पे मैं आज बात करूंगा। ये लास्ट वीडियो है टेंसेस का, एंड तक देख लीजिएगा इसको। यकीन से कह सकता हूं इंशाल्लाह यू विल बी नेवर फेस एनी डिफिकल्टीज अबाउट द टेंस टॉपिक। This will be the last and final round for you people, that you will be solve out your all the problems according to the tense. This is my personal promise to you people. But just watch this video till the end. अब देख लीजिएगा, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपने कहीं से पूछना भी है। अब अफसोस की बात यह है कि मैंने आपको पढ़ाना है, वरना मैं आपको ट्रैक भी दे सकता था कि जाके पूरी दुनिया में पूछ ले कि why we are putting there is and has, what's the reason behind it. Inshallah you will be never search this answer because this is my personal concept and this is my personal research about it. No one can be put and no one can be give the answer of these all the questions through the books, through the guides, through the notes, through the what we can say Rowan and Martin. You can search this question in Rowan and Martin, you will be not found it. So why? Because we are closed minded. We should need to disclose these all the matters to get some proper knowledge and a proper education, because we should need to build our nation according to educated people, not just graduated people. So please मेरे साथ रहिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं बात करता हूं उससे। ओके, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो इंशाल्लाह मजीद में यहां पे बात करता हूं। अब इस चीज के लिए आपने एक टॉपिक को पढ़ना होगा। कौन सा टॉपिक आपने पढ़ना होगा वो मैं आपको बताता हूं कि आपने इसको इसी वजह से पढ़ना होगा ताकि हम बात कर सकें। जी, जैसे कि मैंने आपको बात की है कि भाई आपने इनको लाजमी यू शुड नीड दिस एंड यू हैव टू नीड दिस फॉर्म्स। अब यहाँ पे एक सिंपल मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, जनरल मिसाल से बात करूंगा, इससे आपने याद करना होगा। मैं आपसे सिंपली एक आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमने क्या करना है, अब वर्ब्स को तो हमने पढ़ना है लेकिन वर्ब्स की हमने क्या करनी है, कंपनीज को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? कंपनीज को पढ़ना है। यानी वर्ब कंपनीज, वर्ड कंपनीज से क्या मुराद होता है। अब जरा देख लीजिएगा, ये टॉपिक आपने जिंदगी में कभी भी कहीं जगह से नहीं सुना होगा, लेकिन वर्ब खुद कहता है कि भाई मैं जो है ना वेरियस फैमिली के साथ हूं, मैं वेरियस कंपनी से ताल्लुक रखता हूं, यानी मेरी सेपरेट डिफरेंट काइंड्स की मैं कंपनीज हैं। किस तरीके से? अब वर्ब्स की कंपनीज हमें कैसे पता चला? आपको मालूम है कि कोई भी वर्ब जब होता है, कोई भी वर्ब जब होगा वो दो चीजों को जाहिर करता है। एक तो आपके पास एक्शन को जाहिर करता है, एक्शन से मुराद मूवमेंट, यानी ऐसा मूवमेंट, ऐसा अंदाज किसी चीज का, किसी काम का। दूसरा आपको स्टेट को जाहिर करने वाला, एक आपके सामने क्या है, एक्शन है, और दूसरा आपके साथ स्टेट है। अब स्टेट से क्या मुराद है? स्टेट दो चीजों को कहते हैं, एक आपके सामने स्टेट हैपनिंग यानी होने को जाहिर करने वाला, और दूसरे जो आपके पास स्टेट है वो क्या है, वो है पोजीशन। अब आप कहेंगे सर ये कहां से आप बात कर रहे हैं? अब जरा देख लीजिएगा, एक्शन से मुराद अमल, काम, अंदाज, हैपनिंग से मुराद होना, पोजीशन से मुराद मलकियत, ओनरशिप। अब देख लीजिएगा, मैंने यहां पे लिखा कोई भी वर्ब जब हो वो आपके सामने इन दो कंपनीज के लिहाज से होता है। यहां पे किसकी बात करूं? वर्ब्स हमारे पास दो किस्म के हैं, एक हमारा मेन वर्ब है। सबसे पहले मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मेन वर्ब की बात कर रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा कि ही
स्कूल। अभी आप देखिएगा, ही गोज टू स्कूल। मैंने ये लिखा ही गोज टू स्कूल, या मैंने कहा ही इनवाइट्स द गेस्ट। ठीक है, अब आपको यकीन है कि भाई ये जो गोज है ये किसको जाहिर कर रहा है? सर ये गोज जो है ये एक्शन को जाहिर कर रहा है। किसको जाहिर कर रहा है? एक्शन को। किस तरीके से? क्योंकि गोज एक एक्शन को जाहिर करने वाला है, यानी अंदाज को, इसमें एक एक्शन हो रहा है, बुलाने का अंदाज है। ठीक है, सॉरी जाने का एक एक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रही है इसमें। अब अगर मैं यहां पे दूसरी चीज देखूं, यहां पे मैंने लिखा कि भाई ही इज गोइंग टू स्कूल। ये भी वर्ब है, लेकिन ये वर्ब कैसा वर्ब है? ये तो मूवमेंट को जाहिर कर रहा है, एक्शन को जाहिर करता है, लेकिन ये गोइंग जो है ये आपके पास जाहिर कर रहा है एक कॉन्टिन्यूअस वर्ब को। अब जो कॉन्टिन्यूअस वर्ब को जाहिर कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस से मुराद क्या है? कुछ हो रहा, कुछ होना। अब ये कॉन्टिन्यूअस जो है आपके पास हैपनिंग को जाहिर कर रहा है, यानी ये कॉन्टिन्यूअस है, हैपनिंग को है। इस हैपन गोइंग मीन ये जाता है, यहां पे कोई काम जारी को जाहिर नहीं कर रहा, होने को जाहिर नहीं हो रहा है, यहां पे सिर्फ क्या है? अंदाज बताया जा रहा है कि वो काम करता है जाने का। अब यहां पे जो गोइंग है ये हैपनिंग है, ये काम हो रहा है स्कूल तक, यानी मूवमेंट जो है ना वो जारी को जाहिर कर रहा है। अब देखिए उसके अलावा नंबर 3 अगर मैंने लिखा कि ही हैज गॉन टू स्कूल। अब देखिए, अब गॉन आपके पास मेन वर्ब है, मैं मेन वर्ब की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद कीजिएगा, मैं हेल्पिंग वर्ब के साथ बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूं आपके साथ। अब ये गॉन है, गॉन क्या है? ये गोइंग V4 था, ये हमारे पास V1 V5 है, और ये V4 था, और ये हमारे पास क्या है? V3 है। अब यहां पे देख लीजिएगा, ये बंदा काम की जाहिर कर रहा है, जाने का, लेकिन अब ये बंदे की जाने का काम क्या है? स्कूल में कौन है? ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। अब स्कूल में कौन है? स्कूल में अब आगे लड़का आपको स्कूल में मिलेगा, तो इसको यहां पे पोजीशन बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? पोजीशन बताई जा रही है। अगर इसकी समझ ना आई हो, अब जरा दोबारा देख लीजिएगा। मैंने यहां पे लिखा इसके साथ, यहां पे 4 जुमले में एक मिसाल दे रहा हूं। मैंने कहा कि he has won the match, he has won the match। अब मैच पर पोजीशन किसकी है? मलकियत किसकी है? अगर यहां पे किसी बंदे को ट्रॉफी मिलनी है, ये किसको मिलेगी? ही को मिलेगी कि नहीं? तो ये आपको कैसे पता चला? वन से पता चला, यानी V3 है। इसने आपको बता दिया है कि ये हमारे पास किसको जाहिर कर रहा है? पोजीशन को जाहिर कर रहा है, यानी V3 जो जाहिर कर रहा है ये किसको जाहिर कर रहा है? V3 ये पोजीशन को जाहिर कर रहा है, याद कीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ। और फिर अगर नंबर 5 में यहां पे लिखूं, सब्जेक्ट को मैं चेंज करूं, मैं यहां पे लिखूं कि दे, मैंने लिखा गो, दे गो टू लंदन, वो लंदन जाता है। अब यहां पे फिर एक्शन जाहिर किया जा रहा है, ना ये काम जाने का काम हो रहा है, अगर हो रहा हो तो फिर गोइंग होता, ना ये हैपन हो रहा है, यानी हैपनिंग नहीं की जा रही है, जाने का काम हैपनिंग नहीं है, लेकिन यहां पे जाने का काम कंप्लीटेड भी नहीं है। कंप्लीटेड जब हो तो पोजीशन बनेगा, यहां पे जाने का काम क्या है? एक्शन है। फिर यानी हमें यहां मालूम हुआ कि ये हमारे पास क्या है? V1 है। फिर अगर मैं यहां पे नंबर 6 जो मैं लिखूं, मैं लिखूं कि दे या ही, मैंने वेंट लिखा, वेंट टू स्कूल। अब यहां पे भी एक्शन बताया जा रहा है, लेकिन पास्ट का एक्शन बताया जा रहा है। ये भी हमारे पास V2 है, V2 भी हमें एक्शन को जाहिर कर रहा है। ये तमाम के तमाम आप अगर देखें, V1 जो है और साथ साथ V2 जो है और V3 जो है, ये कैसा वर्ब है? ये एक ऐसा वर्ब है जो किसी काम के करने को, यानी एक्शन को जाहिर किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे कौन से वर्ब है? एक्शन फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें कोई ना कोई मूवमेंट होगा, कोई ना कोई मूवमेंट रहेगा। ये डायनामिकल वर्ब कहलाता है, ये स्टैटिक वर्ब नहीं कहलाता, इसमें मूवमेंट हो रहा है। समझ आ रही है? अब अगर आप देखिए यहां पे V4 की बात कर ले, V4 आपके पास क्या है?
सर ये फोर जब भी मैं कहूं, यानी मैं अगर बता दूं कि भाई आई एम प्लेइंग, तो प्लेइंग क्या है, होना है, ठीक है, मैं खेल रहा हूं। अब यहां पे प्लेइंग जो है ये भी आपके सामने, यानी V4 जो है ये आपके पास हैपनिंग को जाहिर कर रहा है। किसको जाहिर कर रहा है? हैपनिंग को, हैपनिंग वर्ब है। अब अगर मैं बात कर लूं V3 हमारे पास पोजीशन को जाहिर करते हैं, जहां कहीं V3 होगा तो पोजीशन को जाहिर करेगा। ये किसकी बात हो रही है? ये हमारी मेन वर्ब की बात हो रही है। इसी तरह वर्ब के खानदानी के लिहाज से अगर हम बात करें किसकी, हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, यहां पे आप देख रहे हैं हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर लें, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास तीन किस्म के हैं। किस तरीके से? हेल्पिंग वर्ब, एक हमारे पास एक्शन हेल्पिंग वर्ब होता है, और दूसरा आपके पास हैपनिंग हेल्पिंग वर्ब जो होने को जाहिर कर रहा हो, और तीसरा आपके पास किस कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? पोजीशन हेल्पिंग वर्ब है, जो पोजीशन का को जाहिर कर रहा है। अब जरा देख लीजिएगा किस तरीके से। अब मैंने यहां पे लिखा हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, लेकिन मैं हैपनिंग के लिहाज से देखो, मैंने यहां पे लिखा कि भाई आई एम लेक्चरर, आई एम अ लेक्चरर, मैंने आम अ लेक्चरर लिखा। अब देखिए मैं लेक्चरर हूं, होने का मुझे कहां से पता चला? एम से पता चला। किससे पता चला? एम से पता चला। और एम क्या है? ये बी का फर्स्ट फॉर्म है, यानी आपके पास बी जो है ये किसको जाहिर कर रहा है? बी एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो हैपनिंग को जाहिर कर रहा है। अब अगर दूसरे जुमले में यहां पे लिखूं, मैंने यहां पे दूसरा जुमला लिखा, मैंने लिखा कि भाई आई हैव अ बिग हाउस, आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है। अब यहां पे देखिए मेरे पास एक बड़ा घर है, अब मुझे कैसे पता, यानी इस घर का मालिक कौन है? मैं हूं। कैसे पता चला? हैव से पता चला। यानी हैव ने मुझे क्या बताया? हैव ने मुझे यहां पे मलकियत जाहिर की, जिसको आप क्या कहते हैं? पोजीशन जाहिर कहते हैं। अब अगर नंबर थर्ड में बात करूं, नंबर थर्ड मैंने कहा कि आई डू दिस जॉब, आई डू दिस जॉब। अब देखिए जॉब को, मैं ये जॉब करता हूं, करने को किसने जाहिर किया? डू ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि करने का अमल डू ने जाहिर किया, और डू रिप्रेजेंट करता है एक्शन को। तो अब यहां पे आपको यूं मालूम हुआ कि आपके सामने वर्ब को हमने क्या किया? वर्ब को हमने दो हिस्सों में बांटा है, एक हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में भी हमारे पास तीन कंपनी आ गई है, और मेन वर्ब में भी हमारे पास तीन कंपनी आ गई है। अब इस चीज को याद करें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं आपसे बात करता हूं कि भाई इसका तरीका क्या है। अब देख लीजिएगा जी, अब इस बात को याद रखिएगा कि भाई जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, इसकी कंपनी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कंपनीज मैंने बता दी, फैमिलीज मैंने बता दी कि भाई ये कौन कौन से फैमिलीज है, ये कौन कौन सी कंपनी हमारे पास मौजूद है। अब जैसे कि मैंने बताया कि भाई वर्ब की मैं बात करूं, वर्ब कंपनी की, वर्ब कंपनीज। अब वर्ब कंपनीज में मैंने ये बताया कि सबसे पहले हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा पे हमारे पास क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब को आप लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। अब याद रखिए, अब ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो लाजमी बात है कि हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास कितनी कंपनी है? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में भी तीन कंपनी है। एक हमारे पास क्या है? एक्शन की, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? कंपनी नंबर वन। कंपनी नंबर टू क्या है हमारे पास? पोजीशन की। एंड कंपनी नंबर थर्ड हमारे पास क्या है? हैपनिंग की। अब याद कीजिएगा, अब मेन वर्ब में मेरे पास क्या है? नंबर वन कंपनी मेरे पास है एक्शन की, एंड नंबर टू जो मेरे पास है
वो है पोजीशन की, एंड नंबर 3 जो मेरे पास है वो है हैपनिंग की। यानी ये कंपनी याद कीजिएगा। अब किस तरीके से, इसको जरा अंडरलाइन कीजिएगा। ये हुआ, ये हुआ और ये रहा। याद रखिएगा ये सारे के सारे एक ही फैमिली है। ये कंपनीज अब यहां पे देख लीजिएगा, ये आपके सामने कंपनीज को नोट किया जा रहा है। ठीक है, ये कंपनीज को डिनोट किया जा रहा है। यहां पे मैं कंपनीज लिख रहा हूं। अब पहले मैंने कौन सा कंपनी बताया, एक्शन, और ये सारा के सारा कौन सा हुआ, पोजीशन, और ये सारा के सारा क्या हुआ, हैपनिंग। अब मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 3 है। हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, 3 है। नंबर 1 मैंने बताया था कि डू, दूसरा जो मैंने बताया था वो बी, और तीसरा जब मैंने बताया था वो है हैव। ये हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब की अगर आप बात कर ले, क्या कर ले, मेन वर्ब की अगर बात कर ले तो मेन वर्ब आपके पास फॉर्म्स में कितने हैं, 5 है। नंबर 1 आपके पास क्या है, V1। नंबर 2 आपके पास क्या है, V2। नंबर 3 क्या है, V3। एंड नंबर 4 अगर बात कर ले 1 2 3 एंड 4 की अगर बात कर ले, एंड नंबर 5 आपके पास है V5। याद कीजिएगा। अब ये तो सारे के सारे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये डू जो है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन किसको जाहिर कर रहा है, एक्शन को। ए से बोला एक्शन। बी को मैंने बताया था कि भाई हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन किसको जाहिर कर रहा है, हैपनिंग को। हैव मैंने बताया था, लेकिन मैंने कहा किसको जाहिर कर रहा है, पोजीशन। यानी ये 3 कंपनीज है। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो हमारे पास एक्शन के लिहाज से, तो हम क्या कर लेंगे, यहां पे डू लिख लेंगे, और पोजीशन में मेरे पास क्या है, हैव, और फिर हैपनिंग में मेरे पास क्या है, बी। याद कीजिएगा। अब फिर अगर मैं एक्शन की बात करूं तो एक्शन वर्ब मैंने बताया था कि V1 आपके पास किसको जाहिर कर रहा है, एक्शन को। V2 आपके पास किसको जाहिर कर रहा है, एक्शन को। V3 मैंने बताया किसको जाहिर कर रहा है, पोजीशन को। एंड V4 मैंने बताया था किसको जाहिर कर रहा है, हैपनिंग को। पिछले अभी मैंने मिसाल आपको दिया था। अब V5 जो है किसको जाहिर कर रहा है, एक्शन को। तो अब हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास एक्शन के मेन वर्ब में जो बात है, एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला तुम्हारे पास 3 वर्ब है। एक नंबर 1 फर्स्ट फॉर्म, नंबर 2 सेकंड फॉर्म, एंड नंबर 3 फिफ्थ फॉर्म। और हैपनिंग पोजीशन में हमारे पास जो वर्ब है वो कौन सा है, V4। ठीक है, और जो हमारे पास कौन सा है, सॉरी, पोजीशन का जो है वो हमारे पास V3 है, और हैपनिंग का जो है वो हमारे पास क्या है, V4 है। अब जो V1 है और V2 है, V1 एंड V2, V5, V1 को हम क्या कहते हैं, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा गो, एंड V2 को मैंने लिखा वेंट, एंड V3 को मैंने लिखा, V5 को मैंने लिखा गोज। यहां तक बात समझ आ रही है। अब V3 को मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा गॉन, एंड V4 के लिए मैंने क्या लिखा, गोइंग। यानी आपको यहां पता होना चाहिए कि जो भी आपके सामने कंटिन्यूअस फॉर्म है, यानी जो V1 है ये क्या है, ये प्रेजेंट एक्शन फॉर्म। V2 पास्ट एक्शन फॉर्म। V3 perfect possession form, and V4 contiguous happening form, and V5
प्रेजेंट एक्शन फॉर्म। याद रखिएगा इसको। अब अगर मैं यहां पे लिखूं, मैंने जुमला लिखा, इसको जो ही हम डिवाइड करते हैं, जब मेन वर्ब में इसको तब्दील करते हैं, तो हमारे पास डू का सेकंड क्या है, डिड है। थर्ड हमारे पास क्या है, डन। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता, ठीक है, डन कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, और हैविंग भी हमारे पास हेल्पिंग नहीं, डूइंग भी हमारे पास हेल्पिंग नहीं हो सकता, लेकिन डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब होगा। अब हैव में हमारे पास क्या है, हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और हैज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। अब बी फॉर्म में हमारे पास क्या है, इज एम आर, सॉरी एम और आर, और साथ साथ बी, और लास्ट वन आपके पास वाज, सॉरी यहां पे वाज वर्ब, और फिर बी, और लास्ट जो आपके पास है वो है इज। तो ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब बन सकते हैं। ये सारे जितने भी हैं ये इस बी के फॉर्म में आते हैं, तो ये हैपनिंग फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब है। ये जितने भी आपके पास ये है, ये पोजीशन के हेल्पिंग वर्ब फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब की जब भी बात आए, अगर हेल्पिंग वर्ब हमने V1 पुट करना हो तो क्या करेंगे, पोजीशन कंपनी में ये उठाएंगे, V2 हेल्पिंग वर्ब उठाना हो तो ये कर लेंगे, V5 उठाना हो तो ये कर लेंगे। अब यहां पे V1 उठाना हो तो ये कर लेंगे, V2 उठाना हो तो ये कर लेंगे, और V3 उठाना हो तो ये कर लेंगे, V5 उठाना हो तो ये कर लेंगे। यहां पे भी V1 उठाना हो तो ये एक्शन कंपनी की बात हो रही है, और V2 उठाना हो तो ये कर लेंगे एक्शन वर्ब के साथ, यानी ये जो वर्ब हो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का लगाना हमें, ठीक है। और फिर नंबर V5 अगर करना हो तो फिर ये उठा देंगे। अब हमें यूं मालूम हुआ कि हमारे पास जितनी भी ये जो आपका फर्स्ट फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब की, यानी इस डू की हेल्पिंग वर्ब जो डू है, इस डू का जो आपका फर्स्ट फॉर्म है V1 है, ये हेल्पिंग वर्ब बन सकता है, और डू का जो V5, डू तो V1 खुद है, लेकिन डू का जो V5 है ये हो सकता है, और V2 और V5 डू का क्या हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब बन सकते हैं। V3 डू का हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, वो मेन वर्ब होगा, V5 भी, V3 भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, मेन वर्ब रहेगा। अब बी कंपनी का मैंने आपको बताया कि बी कंपनी V1 तो वो खुद है, और इसके साथ M और R भी V1 है, लेकिन इसका V2 भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, V3 भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, और V5 भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। याद रखिएगा ये भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। अब हैव का जो है, हैव का आपका V2 हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, और V5 हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। ये आपके हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। इसका V3 जो है वो मेन वर्ब में होगा, और V5 जो है सॉरी V3 जो है ये मेन वर्ब में होगा, और V4 भी है वो भी मेन वर्ब के तौर पे काम करेगा। अब ये चार्ट देख लीजिएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, अब मैंने आपको ये बात की थी कि यहां पे अगर मैं लिखूं, ठीक है, मैंने कहा कि भाई जब भी हम कोई बात करें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर फिर मजीद में बात करता हूं, मेरे पास जगह थोड़ा सा छोटा ही। अब अच्छा यहां पे देख लीजिए, मैंने यहां पे लिखा था कि भाई जुमला मैंने दिया था एक, मैंने लिखा कि ही इज गोइंग टू लंदन, ये जुमला मैंने लिखा था। अच्छा, अब दूसरा जुमला मैंने लिखा था कि ही हैज गोइंग टू। अच्छा, ये जगह बहुत कम है, मैं आपको इसको मिटा कर मैं आपको समझाता हूं। अब इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे मजीद बात करते हैं। जगह बहुत कम है तो आपको समझ नहीं आएगी। अब देख लीजिएगा, ये तो आपके सामने आप स्क्रीनशॉट लिया होगा, आप देख लीजिएगा। जहां कहीं भी जब आपको समझ नहीं आती, इंशाल्लाह इसको आप डिटेल से देख लीजिएगा तो आपको जरूर समझ आएगी और बेहतरीन तरीके से आप समझे होंगे। अब जरा देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि भाई जहां पे मैं फिक्र लिख रहा हूं कि भाई he has
गोइंग टू स्कूल। एक जुमला मैंने लिखा ये, दूसरा जुमला मैंने लिखा कि ही हैज गोइंग टू स्कूल। थर्ड जुमला मैंने लिखा he has gone to school and number fourth मैंने लिखा he has gone to school and number fifth मैंने लिखा he is not go to school and number 6 he has not go to school and number 7 he does not go to school। अब इसको देख लीजिएगा, आपको मैंने बताया है, ये याद रखिएगा, V1 V2, चलो ठीक है। अब आप देख लें, आपको मैं कह रहा हूं कि कौन सा जुमला ठीक है। आपने पहले जुमले के ऊपर क्रॉस लगाया कि ये जुमला गलत है। मैंने कहा क्यों गलत है? आपने कहा सर ये तो कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस का एस लगेगा। मैंने कहा अच्छा क्यों? अब देख लीजिएगा, और आपने इस जुमले को क्या किया? आपने कहा ये जुमला ठीक है। फिर मैंने कहा ये जुमला कैसे है? आपने कहा सर ये जुमला भी गलत है। ठीक है, हालांकि ये जुमला टेंस के ताबुसाब के गलत है, लेकिन पैसिव फॉर्म के लिहाज से ठीक है। अब जरा देख लीजिएगा, मैं टेंस की बात करूं अभी तक। अब यहां पे देखिए, फिर मैंने कहा कि ये ठीक है, आपने कहा सर ये वाला जुमला ठीक है। फिर मैंने कहा ही इज नॉट गो टू स्कूल, आपने कहा सर ये जुमला गलत है। मैंने कहा ही हैज नॉट गो टू स्कूल, आपने कहा सर ये भी गलत है। मैंने कहा ही डज नॉट गो टू स्कूल, तो आपने कहा सर ये जुमला ठीक है। अब याद रखिएगा, मेरा सवाल ये था कि आप गो के साथ ये सारे के सारे, अगर आप देखिए ये भी V1 है, ये V5 है, ये भी V5 है, ये भी V5 है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये भी सिंगुलर वर्ब है। ये सारे के सारे जितने भी है ये आपका सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, अब लेकिन आपने इस जुमले को गलत किया, ये दोनों को गलत किया। रीजन, अब रीजन को जान लीजिएगा इसका। मैंने आपको बताया मेन वर्ब को देख लीजिएगा, आपके पास ये मेन वर्ब कौन सा है? आपके पास मेन वर्ब है V1। मेन वर्ब कौन सा है? V1। V1 आपके पास कौन सी कंपनी का है? एक्शन कंपनी का है। एक्शन कंपनी का है। अब जब एक्शन कंपनी का है, याद रखिएगा, मैं आपको कुछ मोबाइल की मिसाल दे रहा हूं। आपके पास यहां पे एक नोकिया मोबाइल है। नोकिया ये क्या है? ये मेन बॉडी है नोकिया मोबाइल की। ये क्या है? मेन बॉडी, एमडी से बना मेन बॉडी। और दूसरा, इस नोकिया मोबाइल सिर्फ मोबाइल तो नहीं होगा, इसके लिए सपोर्ट करने के लिए क्या होती है? इसके लिए सपोर्ट करने के लिए बैटरी होती है। अब यहां पे आपने नोकिया मोबाइल को अगर बैटरी देनी हो तो नोकिया कंपनी के मोबाइल होगा, तो लाजमी बात है कि ये बैटरी भी किस कंपनी की होगी? नोकिया की कंपनी की होगी। अगर इसको यहां पे आप क्या करोगे? आपने नोकिया मोबाइल को अगर बैटरी दे दी है सैमसंग की, तो क्या ये चलेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि सेम कंपनी नहीं है, ये गलत है। तो मैंने कहा कौन सा ठीक होगा? आपने कहा सेम कंपनी सर, नोकिया बैटरी किसको लगेगी? नोकिया मोबाइल को लगेगी। तो ये बात ठीक रहेगी और इसको लोग समझेंगे कि भाई ये जेन्युइन तरीका है और ये जेन्युइन मोबाइल है। इसी तरीके से V1 आपके पास कौन सा कंपनी है? V1 आपको मैंने बताया था पिछली, उस पे आपके साथ स्क्रीनशॉट मौजूद होगा। V1 आपके पास क्या है? एक्शन कंपनी का है। और आप हेल्पिंग वर्ब देखें, एक्शन कंपनी को सैमसंग नोकिया को नोकिया बैटरी चाहिए थी। एक्शन कंपनी को सपोर्ट करने के लिए क्या है? एक्शन का होना चाहिए, लेकिन ये इज है।
इस किसका है, इस तो B का V5 है। जब B का V5 है तो ये B किसको जाहिर कर रहा है, ये तो हैपनिंग को जाहिर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एज आपके पास कौन सी कंपनी का है, V5 है, ये किसको जाहिर कर रहा है, हैपनिंग को जाहिर कर रहा है। अब लाजमी बात है कि कंपनी आपस में कौन से हैं, सेम है, नहीं है तो कंपनी की बुनियाद पर क्या होगी, गलत होगी। खवास आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टी क्यों ना हो तो ये जुमला गलत है। रीजन क्यों है, क्योंकि कंपनी बिल्कुल मैचेबल नहीं है। उसके अलावा यहां पे बात हो रही है गो की। गो फिर से कौन सी कंपनी है, एक्शन की कंपनी है, ए लिख रहा हूं। हैज कौन सा है सर, हैपनिंग के तो नहीं है लेकिन पोजीशन कंपनी का है, क्योंकि हैव का V5 क्या है, हैव आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, हैव का V5 जो है ये कौन सा है, ये आपके पास पोजीशन कंपनी का है। तो सर फिर से एक्शन कंपनी और पोजीशन कंपनी आपस में क्या हो गई, क्रॉस कर गई, तो इसी वजह से ये दोनों जुमले गलत हो गए। मैंने कहा यहां पे आ जाइए, ये क्या है, आपने कहा सर V1 है, मैंने कहा V1 आपके पास कौन सा है, आपने कहा सर एक्शन कंपनी का मेन वर्ब है, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब देख लीजिएगा, आपने कहा सर हेल्पिंग वर्ब V5 है, मैंने कहा किसका V5 है, आपने कहा सर डू का V5 जो है वो डज है, तो इस वजह से ये भी हमारे पास कौन सी कंपनी का है, एक्शन कंपनी का है। तो यहां पे देख लीजिएगा कि बैटरी भी मोबाइल भी नोकिया, बैटरी भी नोकिया की, वर्ब भी मेन वर्ब भी एक्शन कंपनी का और हेल्पिंग वर्ब भी एक्शन कंपनी का। तो बिकॉज ऑफ दिस सेम वर्ड एंड सेम कंपनी, तो ये आपके पास ठीक है, जुमला ठीक हुआ। समझ आई ना। अब यहां पे देखिए मजीद इन जुमलों में, सर ये जुमला हमारे पास गॉन क्या है, सर गॉन हमारे पास है V3, गॉन हमारे पास क्या है V3। सर V3 मेन वर्ब के लिहाज से कौन सी कंपनी है, सर V3 हमारे पास पोजीशन की कंपनी का है। तो V3 जब पोजीशन की कंपनी का है तो यहां पे पोजीशन लिख लीजिएगा, पोजीशन हमने लिख लिया। अब आपने पोजीशन लिख लिया तो सर पोजीशन के लिए आपका ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, किस तरीके से, अब ये हेल्पिंग वर्ब इस आपके पास कौन सी कंपनी का हेल्पिंग वर्ब है, इस तो आपके पास हैपनिंग का हेल्पिंग वर्ब है, और हैपनिंग और पोजीशन को अगर कंपनी को आप इकट्ठा कर ले तो लाजमी बात है कि ये V5 तो है लेकिन ये जुमला क्यों गलत है, सेम कंपनी की वजह से। यहां पे देखिए सर ये V3 है, कौन सी कंपनी है, पोजीशन कंपनी का है, सर हिज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, सर V5 है, किस कंपनी का है, सर पोजीशन का। पोजीशन कंपनी एंड पोजीशन कंपनी सेम कंपनी, बिकॉज़ ऑफ दिस सेंटेंस इज बी करेक्टेड। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिएगा आपके पास क्या है, V4 है, V4 कौन सी कंपनी है, सर हैपनिंग कंपनी का है, किस कंपनी का है, हैपनिंग कंपनी का है। सर हेल्पिंग वर्ब देख लीजिएगा, सर हैज है, हैज किस कंपनी का है, सर पोजीशन कंपनी का है, तो पोजीशन वर्सेस हैपनिंग हैज बीन क्रॉस्ड, नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, V4 किस कंपनी का है, सर हैपनिंग कंपनी का है। तो यहां पे इज देखिएगा, सर किस कंपनी का है, हैपनिंग कंपनी का है, बोथ आर सेम कंपनी, सो बिकॉज़ ऑफ दिस सेंटेंस इज बीन कंप्लीटेड। तो ये है आपकी ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ द टेंसेस। किसी भी जुमले में देखिए मेन वर्ब जिस कंपनी का हो, क्योंकि वर्ब हमें क्या बताता है, वर्ब शोज एक्शन, हैपनिंग एंड पोजीशन इन अ सेंटेंस। द वर्ड व्हिच शोज action, happening and position in the sentence, that will be called verb. And verb have two types, number one is main verb and number two is helping verb. Helping verb when we support the main verb, but the main verb as which company, the main verb will belong to which company, and that company helping verb when we support the main verb. Muslims को Muslims ही support करेगा, जिस कास्ट की कोई बात होगी तो उस कास्ट को उसी कास्ट को सपोर्ट करने वाला है, ये नेचुरल फिनोमेना है, इसको आप कभी भी ये नहीं कर सकते। तो इस वजह से अगर हेल्पिंग वर्ब आपके पास किसका है, मेन वर्ब आपके पास एक्शन कंपनी का है, तो आप कभी भी इसके साथ इज़्मार नहीं लगा सकते हो टेंस में। ठीक है, पैसिव फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा, पैसिव फॉर्म में भी ये सेम तरीका कार है, ये सेम कंपनीज है इंशाल्लाह। उसके लिए कब तक इजाजत चाहूंगा, यानी उसके लिए भी हम क्या करूंगा, यानी मैं जो है ना सॉरी उसके लिए भी मैं आपको बेहतरीन एक परफॉर्मेंस दूंगा पैसे वैस के लिहाज से। लेकिन यहां तक जो टेंसेस की थी ये 5 लेक्चर में टेंस आपको मैंने की है इंशाल्लाह। अभी आप वीडियो 1 2 3 4 5 लेक्चर आप देख ले तो आपको यकीन से कह सकता हूं कोई भी फिर से प्रॉब्लम हो, मैंने कल भी अपनी वीडियोस के एंड पे नंबर लिखा हुआ है, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा इंशाल्लाह। वीडियोस इस
वीडियोस को अगर एक बार समझ नहीं आई दोबारा देख लीजिएगा तो आपको जरूर समझ आएगी। फिर भी अगर ना हो तो मैं बताता हूं कि भाई मेरा नंबर 0341913640 के साथ आप मेरे से रब्ता कर सकते हो। तो इंडिविजुअल आपका नाम लेकर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपके मुताबिक, आपके क्वेश्चन के मुताबिक आपको वीडियो अपलोड करूंगा। तो इंशाल्लाह तब तक इजाजत चाहता हूं। आप यकीन कैसे कह सकता हूं कि अभी तक मेरा पढ़ाने में कोई फेलियर पीस नहीं आया है, तो आप जरूर से, लेकिन वीडियो जब आपने देखा हो तो आप जरूर जो है ना इससे कोई फायदा आप उठा सकते हैं। तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, सीरीज के साथ इंशाल्लाह बेसिक टू एडवांस के साथ मैं बात करूंगा। अब बेसिक से मैं बना रहा हूं, लेकिन ये वीडियोस मैंने इसलिए जरूरी समझे ताकि मैंने कहा कि मैं आपके लिए कोई आपके मुताबिक टॉपिक को छोड़ लूं जो आप आसानी से समझ सके। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।